नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्रीय जगत विजन में। आखिरकार लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने बिलासपुर के एसबीआर कॉलेज के मैदान पर अधिकार का फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर को फाइनल सुनवाई कर कॉलेज मैदान की जमीन को शासन का होना बताया है। देखिए पूरा मामला। चीफ जस्टिस के डबल बेंच ने सभी सेल डीड को निरस्त कर शासन को आदेश दिया है कि मैदान को सरकार के खाते में दर्ज किया जाए। हम आपको बता दें कि मैदान को बचाने के लिए मामले में अतुल बजाज, सुमित बजाज, अमित बजाज और संतोष बजाज ने याचिका दायर किया था। शासन की तरफ से जमीन के बचाव करने छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने पैरवी करते हुए शासन का पक्ष रखा था। अंततः हाईकोर्ट के डबल बेंच ने एसबीआर कॉलेज मैदान का फैसला सुना दिया है। मामले की फाइनल सुनवाई 2 दिसंबर को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और ए.के. प्रसाद के डबल बेंच में हुई। जी बताइए। हाँ, आप लोग का ट्रस्ट का डिस्प्यूट है ना दोनों, बस दैट इज नॉट ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास कैसे आई? Admittedly, my lord, application under section 14 moved by the incompetent person that was dismissed by the learned SDO and which has been allowed by the learned single judge. Allowed by the learned single judge. The property, my lord, admittedly with the hands of the state since 1972, my lord, page number 110. It is not a dispute. Even in the application under section 14, it has been mentioned by the private respondent that they have handed over this property to the state. To the state. Page number 99 is an application, my lord. In the first para, it is admitted by them. 1972, my lord, this college was taken over by the state with entire property. Since 1972 to the 1995, the name was not mutated. Then the proceeding was drawn by the learned collector, my lord. In that proceeding, it has been consented by the trust and order of the mutation was passed by the learned collector. Other land name was mutated, the document is on record, except these 2 land, which has been left. And that benefit has been taken over by the private respondent. The main thing is, my lord, while moving the application under section 14, page 99, though the land was vested with the state, but state was not made as party. The entire proceeding was conducted without impleading the state, without calling any response from the state of the higher education. So state was not heard before the SDO. Achha, not heard before. Not heard. Even in the single bench, on the honorable single bench, my lord, may kindly have the party, state of Chhattisgarh through collector, not through the secretary of the higher education. Even before the malord, the state, the appeal which has been preferred by the state through the collector. The land was vested to the secretary, Department of Higher Education. So there are so many things which could not be brought before the 30 malord, since the state was not implicated as party. I have filed the entire document to that extent, malord. So this is the first infirmities with respect to the original proceeding. Mr. Avinash Kumar Mishra, who appeared on behalf of respondent number 1 and 2. True. Who was... They have not made any objection before the learned single. They should have said... Yes, they should have, man. They should have. They should have made such type of prayer before the learned single bench. So admittedly, the property in question was vested in the state. State. In the 1972, page 110. It is admitted by the private respondent, page 99. His application में कहीं लोग 16/9/20 का ऑर्डर है। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है? ये जो 108, 107, 109 में 108 था, 109 और 107 107 भी है सर, 107/3। तो ये स्टेट में वेस्टेड थी प्रॉपर्टी, एंड इट इज एडमिटेड बाय द पेज नंबर 99 में कैन यू लुक 99 व्हाई आई एम सेइंग सो। This is the application basing on which the proceeding under section 14 was initiated, my lord. Page number 99. मालूम हो कि एसबीआर कॉलेज मैदान को लेकर सिंगल बेंच के फैसला के खिलाफ अतुल बजाज, अमित बजाज, सुमित बजाज और संतोष बजाज की तरफ से अधिवक्ता
अनुराग दयाल श्रीवास्तव ने डबल बेंच में याचिका दायर किया था। शासन की तरफ से डीबी को महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने जमीन शासन का होना बताया। हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने अतुल बजाज और अन्य की याचिका को खारिज कर ट्रस्ट के पक्ष में पहले फैसला सुनाया था। अतुल बजाज, अमित बजाज, सुमित बजाज और संतोष बजाज की तरफ से अधिवक्ता अनुराग दयाल श्रीवास्तव ने सिंगल बेंच के खिलाफ चीफ जस्टिस के डबल बेंच में याचिका दायर किया था। शासन के महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने भी एसबीआर मैदान को शासन का होना बताया था। दोनों अधिवक्ताओं ने सुनवाई के दौरान बताया कि जमीन को तत्कालीन ट्रस्ट ने शासन को दान दिया था। भूलवश वर्तमान में मौजूद 2 एकड़ 38 डिसमिल जमीन खाते में दर्ज नहीं हुआ था। इसका फायदा उठाकर वर्तमान ट्रस्टी कमल बजाज ने जमीन को 11 लोगों के पास रजिस्ट्री कर दिया है। इस दौरान डबल बेंच ने ट्रस्टी कमल बजाज के अधिवक्ता का भी तर्क सुना। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अतुल बजाज और अन्य की अपील को स्वीकार किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि रजिस्ट्री को तत्काल खारिज किया जाता है। साथ ही शासन को निर्देश दिया जाता है कि प्रक्रिया के तहत छूट गई कॉलेज मैदान की जमीन खसरा नंबर 107/3, 108/3 और 109 कुल रकबा 2 एकड़ 38 डिसमिल जमीन शासन के खाते में चढ़ाई जाए। 99 जी क्या है? This is the application, my lord. ये एप्लीकेशन By the Chirag Bajaj, who was not competent to become a trustee as per the deed of a trust. Trust deed is also on record, my lord. ये चिराग बजाज रिस्पोंडेंट है? Yes, respondent. अच्छा, Chirag Bajaj and Ananya Bajaj. What has happened in this case, my lord? 1944, this trust was formed. That is the document. आप लोग कौन हो? We are also a trustee, ousted trustee. Page 47 में kind look. तो चिराग First, my lord, may come to page 41. तो चिराग बजाज was also not made a party in that appeal. But Chirag Bajaj is a party. चिराग, अच्छा सॉरी है तो, हाँ अच्छा ये लोग अच्छा इन्होंने एप्लीकेशन मूव Moral. किया। First, my lord, may come to page 41, my lord. This इन्होंने एप्लीकेशन काय बात की मूव किया था? इन्होंने एप्लीकेशन दिया कि इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने की परमिशन दी जाए। अच्छा, टू सेल द परमिशन। Yeah. और first 108, 107 और 109 की। अमल और पैरा नंबर 2 में करनी होगी, पैरा नंबर 2 पेज नंबर 99। ये यह कि हमारे उपरोक्त ट्रस्ट की एक अचल संपत्ति भूमि मौजा 11/so यह कि शिव भगवान रामेश्वर लाल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा श्री JP वर्मा महाविद्यालय को ट्रस्ट की अचल संपत्ति महाविद्यालय के संचालन हेतु दिया गया था। मीन्स दे वर एडमिटेड, my lord, इट इज नॉट इन डिस्प्यूट। परंतु राज्य शासन के द्वारा उक्त JP वर्मा महाविद्यालय का संचालन प्रारंभ करने के पश्चात ट्रस्ट की संपत्ति का उचित देखभाल नहीं करने के कारण प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। कौन सी एप्लीकेशन जो आप 99 पढ़ रहे हैं, my lord, इसमें प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन नहीं ये है। पेज नंबर 101 में है सर। 101 सेकंड पैरा नंबर 2 में पैरा नंबर 2 पे 107, 108, 109 नहीं है। 109 का रेफरेंस है पेज नंबर 1110 110 मतलब सॉरी। यही एप्लीकेशन इन्होंने एप्लीकेशन पेज नंबर 99 है, यही तहसीलदार को दिया था, SDO को, SDO को। हाँ, पेज 99। वही तहसीलदार होता है। अच्छा वो सुन। So para number 2 they have admitted, my lord, that land was handed over by them to the state. It is admitted fact. While moving an application, while admitting this fact, this land was handed over to the state in the 1972. No such application or proceeding was drawn to taking back the possession prior to seeking the permission to sell. There is no such proceeding was drawn. Land was still vested and handed over and in possession with the state. Now page number 110 में कर 110 110 जी। पैरा नंबर 1 मॉडल, इट इज अ लेटर बाय द प्रिंसिपल टू तहसीलदार। महाविद्यालय 1972 से शासनाधीन हुआ। उस समय महाकौशल शिक्षण समिति द्वारा मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग को 10.5 एकड़ भूमि भवन, खेल मैदान, स्टाफ क्वार्टर हेतु दी गई। कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सोनसो के पद खसरा नंबर संपूर्ण खसरा नंबर 107, प्रस्तावित आवासीय शैक्षणिक 108, 109,
खसरा नंबर 107, 108/3, 109 पर किया जा रहा दावा गैर कानूनी है। खसरा नंबर 107, 108 एवं 109 महापरिषद शिक्षण समिति द्वारा 1972 में शासनाधीन होने के समय महाविद्यालय को प्रदान की गई है। उक्त भूमि महाविद्यालय के पास 1972 से ही है। So this fact is not under dispute, my lord. It is also not dispute that they have not drawn any proceeding for taking over the possession from the state prior to initiation of the proceeding under section 14. Or they have, without taking the permission from the competent authority, they have sold this land. That competent authority to sell these lands. So That was dismissed. that was अच्छा dismiss कर दिया था उसने. But learned single judge has allowed. Where is that order? My lord. Page 45 का बैक साइड. वेबसाइट पे आ जाए. ये 5% की बिडिंग इन्होंने की. ये 11 लोग हैं इसमें. 5%, 12.5%, 10, 10 और उसके बाद ही एक्सेप्ट किया. हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या था? मैं फिर से हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ देता हूं. हाईएस्ट बिडर और क्या था? हाईएस्ट बिडर इट शुड बी नॉट ऑफ द रजिस्ट्रार इज नेसेसरी. तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं है. इसमें था दिस वैल्यूएशन शैल बी डिस्क्लोज टू द कलेक्टर, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट टू इंटर्न शैल. तो उसका कोई फर्दर नहीं सब है एक्चुअली. अच्छा ये हो गया. अब चलिए ये सब तो अपनी चीज है, इससे हम लोग से क्या मतलब. बट वी हैव टू सी ना कि जितना नहीं एज ऑन डेट वो प्रॉपर्टी तो अभी वो है नहीं ना. वो प्रॉपर्टी इनएडवर्टेंट है या क्या है. It has been sold in some others. Now it is not in the. तो इसीलिए इन्होंने भी नहीं लिखा उसको, ट्रस्ट का ही माना. और भाई कम से कम यू बीइंग द स्टेट तो आप हमने तो रिजेक्ट किया था ना. नहीं आपने तो रिजेक्ट किया था, लेकिन एज ऑन डेट वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट की ही मानी जाएगी जब तक कि वो भाई उन्होंने तो लिख के चले गए. उससे वो मेडिटेशन में आपका ये कहना है कि जो लेटर उन्होंने दिया था जब प्रीवियस जो ट्रस्टी थे कि उन्होंने कहा कि 12 पॉइंट समथिंग देंगे और वो म्यूटेशन के रिकॉर्ड में 2 पॉइंट समथिंग रह गया. तो यू से दैट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट इन दैट सर्कमस्टांसेस. वेदर इट शुड बी, इट कैन बी इम्प्लाइड एज ऑन डेट. टेक्निकली तो नहीं हो सकता ना. टेक्निकली तो फॉर दैट यू हैव टू टेक रिकोर्स टू लॉ. As on date, that property, by implication, you want that this property should be treated as a state property. हमारा तो उसमें वो ये से नहीं. It is order of the हमारा से collector. ये है कि जो रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट किया था, that was justified. We are against that order. हाँ नहीं ठीक है तो but registrar can reject in the circumstances which has been pointed in section 14. Yes. Section 14. But section 14 says. हाँ section 14. Section 14. हाँ section 14 says. 14(2). 14(2) what? हाँ. 14(2) say. The registrar shall not refuse. नहीं. It is not an absolute power की एप्लीकेशन है. नहीं तो किस सर्कमस्टांसेस में रिफ्यूज कर सकता है, किस सर्कमस्टांसेस में एक्सेप्ट कर सकता है, यही 14 में लिखा हुआ है. Can not refuse his sanction in respect of any transaction specified in subsection 1. Unless such transaction. Subsection 1 को देख लीजिए. Section हाँ. Subject to the direction in the instrument of trust or any direction given under this or any other law by any court. No sale, mortgage, exchange or gift of any movable property and no lease for a period such and such belonging to a public trust shall be valid without the previous sanction of the registrar. अब ये किसके लिए है? The registrar shall not refuse his sanction in respect of any transaction of subsection 1 के लिए, unless such transaction will, in his opinion, be prejudicial to the interest of public trust. Right. अब उसको discretion दे दिया कि if it is prejudicial to the public trust, he has the right to refuse. अब उसने क्या कहा? उसने कहा इन कारणों से इट इज प्रेजुडिशियल. अब उसने कहा कि जो प्रॉपर्टी कॉलेज से अटैच्ड है उस पे जो स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड यूज कर रहे हैं वो नहीं हो सकता क्योंकि मतलब वही यूज होना चाहिए और अदर पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता. दिस इज व्हाट द रीजन. चलिए वी थिंक ओवर इट. 4:30 भी देखिए. वो ठीक है, वो समझ. वी हैव गिवन मच टाइम टू दिस. Only for a moment. Page 67 में काइंडली. Page 67 में. क्या है? Because they are saying
This is an order of the collector, my lord. My lord is asking that whether there is an order. It is an order of the collector to mutate the entire land. So mutation, lefting of the particular land or mutation of the other land, it will not create any title. That's why I'm saying हाँ, वो there आपकी is an बात order. सही है, वो There is an order of the collector, my lord, page 67. हाँ, समझ गए, So समझ they गए, have to उसमें- challenge it. हाँ, That's why I'm saying the land is in the possession of the state. They have to draw the proceedings आपका for. थोड़ा सा मामला दूसरा हो जाता है कि आप लोग वही है, स्टेट इज द मोस्ट थिंग, आपका थोड़ा सा, आप लोग तो विरोधी हैं। And One more minute. हाँ, and हाँ, more, आप there is एक one दूसरे, judgment. I'll take just half a minute, my lord. But I'm citing ये only जो one ये तो judgment. कह रहे थे, That section 52 क्योंकि of आपने भी बहुत सी चीजें जो है ये सब क्यों नहीं लगाया था, What सुप्रीम section? कोर्ट का जजमेंट और क्यों नहीं लगाया था उस समय? जो मैंने रिप्लाई में हाँ, दिया। वो जो उन्होंने लिखा है ये लेकिन- तो- लेकिन दो section- बातें और और आप अपने प्लीडिंग्स में खुद कह के आ रहे हो कि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, बताना। हाँ, तो ये आपका थोड़ा सा Somersault. अब वो तो इन्हीं पे है। Somersault. दो बातें और केवल आधे सेकंड। अब मैं किसी को कोई बात नहीं दूंगा, बस वी हैव अंडरस्टूड, दैट इज ऑल, वी हैव फाउंड द क्रक्स ऑफ द थिंग, लेट अस सी। बस केवल ओरली कह देता हूँ, Only one पेज judgment 41 पे I have महाकौशल आपने कोई जजमेंट दे दीजिए, I have cited only one judgment. पैराग्राफ मूव करिए। Para 16, my lord, that section 52 of the list pendency, that principle is applicable in the court auction also. अच्छा, ठीक So that auction is also sub judice because the writ appeal was pending. ठीक ठीक ठीक। My lord, the Mahakaushal Education Society is different. हम्म, शिव भगवान रामेश्वर लाल चैरिटेबल ट्रस्ट इज डिफरेंट, हु ओन्स द प्रॉपर्टी। जो आपको पेज 64 और 67 दिखाया गया है, वो ट्रस्ट का नहीं है जिसने प्रॉपर्टी बेची, वो महाकौशल एजुकेशन सोसाइटी का है। अच्छा, ट्रस्ट इज नॉट गिविंग कंसेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। हु इज द ट्रस्ट? और- ट्रस्ट तो जो मिली भगत से लेके उसको जस्ट लाइक, छोड़िए, जाने दीजिए, वो तो बहुत रजिस्ट्रार को कुछ दिया वो तो अनएंडिंग प्रोसेस है। के साथ रजिस्ट्रार को सारी चीजें दी है। लेट अस सी, देखिए Great. आगे बढ़ाओ, 4.5 कर दीजिए, बस देखा जाएगा हो सकते हैं। बाकी अब चलिए लिस्ट 2 पे आ जाइए, अब ये कल बाद में होगा, ये बहुत टाइम हो गया इसमें। थैंक यू। हाँ, एनआई के बेल वाली बुला दो जल्दी से, बस एनआई बेल ही। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन की सेल डीड करने वालों को तगड़ा झटका लगा है। हम आपको बता दें कि ट्रस्ट के कमल बजाज ने जमीन को सौरभ सोनछात्रा, शिशिर सोनछात्रा, रुपेश सराफ, अजय कुमार जायसवाल, गुरुविंदर सिंह भाटिया, सुमित भाटिया, बलवीर भाटिया, अमनदीप सिंह, अरविंद कुमार, भानुशाली, दीपक अग्रवाल और मिन्नत भानुशाली के नाम पर रजिस्ट्री किया है। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।